To all of you, my dear student. Once again, I, Bipin Mishra, TGT English of SRPS, welcome you all to the online class of English Literature. So, my dear student of class 8, today I am here with a new poem of your class, which is titled as When I Set Out for Lyonesse. So, Lyonesse is a name of a place, okay? Here, the poet is Thomas Hardy. He is telling that when I went to Lyonesse, when I set up myself there, what happened with him. So let us read the chapter and find the fact. We will go through the poem once and we will find out the facts. So first of all, the introduction of the poem is very important. See, before starting any of the chapter or any of the topic, we need a proper introduction for that. So today I will introduce with the poem. In the poem, the introduction is in this way: as a young apprentice architect, means here the poet is architect and he is as a trainee. He is as a trainee means a person who is working to gain the training of the particular field or in the particular field or area. So here the poet is a trainee architect, means he is taking the training of being architect. He is doing his apprenticeship, where apprenticeship means a type of short 1,000 nowadays. In apprenticeship a person will get only 3 to 4,000 as his maintenance charge. So this is the apprentice. Here British poet and novelist Thomas Hardy once visited a parish to supervise the restoration of a church. What happens? Thomas Hardy once he visited to a place Paris. He was there to investigate the restoration of a church, what was happening in the church. He went there. On his return from Paris, people noticed two things about him. When he was returning from Paris, people of that place they noticed two things in him. What was there? A new glow in his eyes and a crumpled piece of paper sticking out of his coat pocket. There was a new gleam, a new shine, a new brightness in his eyes, and a piece of paper which was crumpled and which was sticking into his coat pocket. The paper, it is recorded in one of his biographies, contained a draft of poem. ये जो पेपर है, this paper, it is recorded as one of the biographic paper, means उसमें उनकी biography थी, जीवन परिचय, जीवन कहानी, and there was one poem also in that paper. You are going to read that very poem inspired by a visit to place which the poet called Lyonesse. हम लोग वही पोएम अब पढ़ने जा रहे हैं जिससे कि पोएट इंस्पायर होकर के लाइनोसी जिस जगह पे गया था, जिसको बोलता है लाइनोसी जगह, वही पोएम अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं. तो चलिए हम लोग भी ये पोएम पढ़ के देखते हैं कि किस तरीके से हम लोग इंस्पायर होते हैं इस पोएम को पढ़ने से. व्हेन आई सेट आउट फॉर लायोनेसी, जब मैं लाइनोसी के लिए निकला, 100 माइल Lyonesse in Arthurian legend, the mythical birthplace of Sir Tristram in England, believed to have been submerged by sea. Here an imaginary place. ठीक है, ये एक इमेजिनरी प्लेस है. जैसे कि आर के नारायण ने मालगुडी टाउन बनाया था, उसी तरीके से लाइनोसी यहाँ पर पोएट का इमेजिनरी प्लेस है. द राइम वॉज ऑन द स्प्रे. राइम मतलब कि फ्रॉस्ट यानी कि जो जिस तरीके की पूरी फ्रीज होने वाली जो बर्फ़ चारों तरफ पड़ती है, वो पूरी तरीके से स्प्रे हो रही थी चारों तरफ. एंड स्ट्रेट लिट माई लोनसमनेस, और सीधी जो लाइट आ रही थी वो मेरे अकेलेपन को दूर कर रही थी. व्हेन आई सेट आउट फॉर लाइनोसी, जब मैं लाइनोसी के लिए निकला 100 माइल्स अवे, जो कि 100 मील दूर था. व्हाट वुड बी चांस एट लाइनोसी, क्या होगा लाइनोसी में मेरे साथ, क्या होने वाला है, किस चीज़ के चांस मिलेंगे होने के लिए. चांस टू हैपन, बी चांस मीन्स चांस टू हैपन, क्या हो सकता है लाइनोसी में. वाइल आई शुड सोजॉर्न देयर, सोजॉर्न का मतलब स्टे, क्या मैं वहाँ पर, मुझे वहाँ पर रुकना चाहिए. नो प्रॉफिट डस्ट डिक्लेयर, किसी भी डेयर्ड, मतलब डस्ट का मतलब डेयर्ड, किसी भी प्रॉफिट यानी कि हो गया जैसे कि फादर हो गए या फिर कह लो मौलाना हो गए, मतलब कि जो
संत साधु महात्मा यानी पुजारी लोग, उनको प्रॉफिट कहते हैं। तो प्रॉफिट ये डेयर नहीं कर रहे थे डिक्लेयर का। नॉट डिड द वाइजेस्ट विजार्ड गेट, यहाँ तक कि जो सबसे होशियार वाइजर्ड था वो भी नहीं गेस कर पा रहा था। वॉट वुड बी चांस्ड एट लाइनोसी, लाइनोसी में क्या होने वाला था मुझे खुद नहीं पता था, और क्या हो सकता है इसके बारे में मुझे जानकारी नहीं थी। वाई शुड आई सोजन, लाइनोसी के लिए निकलते हैं जो कि 100 माइल दूर था, और वहाँ पर उनको क्या करना पड़ा, वहाँ पर उनको जो स्प्रे करना पड़ा। जो स्नो चारों तरफ से गिर रही थी ज़मीन पर, उसमें से उनको गुज़रना पड़ा, और जो स्टार की लाइट आ रही थी वो उनके अकेलेपन को दूर कर रही थी। जब वो लाइनोसी के लिए निकले जो कि सैकड़ों मील दूर था, वो सोचने लगे कि क्या चांस होगा लाइनोसी में, मुझे क्या होने वाला है, मैं वहाँ पर क्यों रुकूं। और कोई भी पुजारी ये डिक्लेयर करने के लिए डेयर नहीं कर रहा था, यहाँ तक कि जो होशियार से होशियार वाइजर्ड था वो भी नहीं गेस कर पा रहा था। मेरे साथ लाइनोसी में क्या होने वाला था ये मुझे नहीं पता था। वाइल आई शुड सोजन देयर, मैं वहाँ पर क्यों रुकूँ, फिर भी मुझे वहाँ पर रुकना था, स्टे करना। वैन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनोसी, जब मैं लाइनोसी से वापस आता हूँ, विथ मैजिक इन माई आइज, जब मेरी उस समय मेरी आँखों में जादू हो गया था। ऑल मार्क्ड विथ म्यूट सरमाइज, सब कोई जो भी बैठे थे चुपचाप मुस्कुरा रहे थे। माई रेडियंस रेयर एंड फैथम लेस, मेरे जो रेडियंस ग्लो चमक थी वो काफ़ी रेयर थी, और इतनी डीप थी, इतनी डेप्थ थी जिसका मेजरमेंट नहीं किया जा सकता। फैंटम लेस कहा जाता है इसका मतलब। व्हेन आई रिटर्न फ्रॉम लाइनोसी, जब मैं वापस लाइनोसी से आया, विथ मैजिक इन माई आइज, मेरी आँखों में चमक के साथ। तो दिस पोएम वॉज composed by Thomas Hardy. What you all have to do, you all have to complete the working with the poem. So my dear student, I hope all of you would have understood the chapter. If there is any problem, then do ask to me. Thank you.